Hmm? Very good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is Unit 3, and the name of the chapter is Physical Fitness, Wellness and Lifestyle. Physical fitness, wellness and lifestyle. Physical fitness in the sense that our health, our muscles, our bones is in good conditions. Wellness and lifestyle. What is in this chapter? Let us see. Man is said to be the man of action. His activities are full of movement, and for his physical fitness is required. When we are going to perform any physical activity, we must be healthy with our physique and with our health. Physical fitness and wellness play an important role in fulfilling the objective of a physical education. The physical fitness and wellness programs are used to as one of the mode through which the aim of physical education can be achieved, that is complete wholesome development of the individual. Complete wholesome development of the individual, that means a person's development in related to morality, intellectual, their social behavior, their physical health, their mental health, everything is included in wholesome development. And who is completing this motto? It is our physical fitness. If we are physically good, then our health, our mind, our heart, our social, our intellectual, everything will be very good. Next, it bring up optimum health and also help the society to create a healthy environment to grow, and maximum is the pride of nation. A healthy and fit society who fulfills the WHO objective. What is the WHO objectives? Live most and serve the बेस्ट. दैट मीन्स आपकी जो लाइफ हो वो लॉन्ग हो और हमेशा आप क्या करें, अच्छा सर्व करें. और अच्छा सर्व आप तभी कर सकते हैं जब आप फिजिकली पूरी तरह से फिट हों. बाय मीन ऑफ फिजिकल फिटनेस वेलनेस प्रोग्राम्स good lifestyle can be achieved. Good lifestyle can be achieved means the style which we are using in our daily life, it is known as lifestyle. That which type of life we are going to lead. Next one is meaning of physical fitness. What is the meaning of physical fitness? It is the capacity of an individual to do work effectively with joy and pleasure. After the work is over, he is still had sufficient capacity to do more work without any exertion. Moreover, his recovery faster than and quicker. What that mean? किसी इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी होती है, जो फिटनेस होती है, जो वो कैपेसिटी जो क्या करता है, किसी वर्क को इंजॉय और प्लेजर के साथ करने के लिए उसे एनर्जी देता है, और उस काम के कंप्लीट होने के बाद भी उसके पास कुछ और काम करने के लिए कैपेसिटी बचे. दैट मीन्स उसकी थकान को बहुत ही जल्दी रिकवर करके फिर से एक नए टास्क की ओर आगे बढ़े. ये किसके अंतर्गत आता है? द मीनिंग ऑफ द फिटनेस. अगर आप फिट हो तो आप कोई भी काम करोगे बहुत ही जॉय के साथ करोगे और हमेशा क्या करोगे, नेक्स्ट काम के लिए रेडी रहोगे. नेक्स्ट थिंग इज there is different views regarding physical fitness. Some say it is related to task or work. Some consider it is good looking physique. Many consider it is a proper functioning of psychological system, whereas it is a term with a wide meaning. It more than possessions of strength, speed and endurance. The person who remains energetic, enthusiastic and cheerful in doing his work is said to be physically fit. Thus, it is physical work output ability of an individual. The level of physical fitness varies from person to person. It depends upon the nature of work, size, shape, structure and sex, and the
adaptability of the individual. Different games require different level of the physical fitness depending upon the type of activity, event, game and sports. Physical fitness require efficient motor mechanism, movement of body, efficient organic mechanism, psychological functioning and efficient mental functioning, psychological setup. A fit individual possess these all. What's that mean? कि कुछ की नज़र में अगर हम बात करें कि फिजिकल फिटनेस क्या है, तो हर पर्सन की इससे रिलेटेड अपनी डिफरेंट टाइप की क्या है अज्यूम्पशंस हैं, जिसमें कुछ को लगता है कि जो फिजिकल है उनको लगता है कि टास्क और वर्क, जो फिजिकल फिटनेस है वो टास्क या वर्क से रिलेटेड है. कुछ को लगता है इट इज़ रिलेटेड टू द गुड लुकिंग फिजिक, अगर आप गुड लुकिंग है फिजिक में तो वो आपके लिए फिजिकल फिटनेस है. और कुछ इसको कंसीडर करते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल सिस्टम, अगर आपका साइकोलॉजिकल सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है तो आप फिजिकल फिट हैं. लेकिन रियलिटी ये है कि फिजिकल फिटनेस क्या है, एक बहुत ही वाइड मीनिंग है, इसको सिर्फ किसी एक एस्पेक्ट के साथ नहीं रखा जा सकता है, ये अपने आप में सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करती है, चाहे वो आपकी क्या हो फिजिकल फिटनेस रिक्वायर, चाहे वो आपके मैकेनिज्म हो, बॉडी के मूवमेंट हो, आपको साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग हो, या तो आपकी डेवलपमेंटिंग प्रोसेस हो. इसमें हम देखते हैं और आगे हमें क्या मिलता है. कुछ डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया है. जो वेबस्टर है इंसाइक्लोपीडिया, वेबस्टर इंसाइक्लोपीडिया में क्या कहा गया है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू डेली रूटीन वर्क without fatigue, moreover to participate in playful activity and still reserve enough capacity to meet an emergency. डेविड आर लैम्ब ने कहा है फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू मीट प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिजिकल चैलेंज ऑफ द लाइफ विद सक्सेस. एंड डॉक्टर कार्लोस का कहना है सक्सेस अडॉप्शन ऑफ द टू स्ट्रेस्ड टू वन लाइफ स्टाइल. दैट मीन्स एवरी साइंटिस्ट हैव द डिफरेंट वर्ड्स टू डिस्क्राइब फिजिकल फिटनेस, बट at last the in conclusion which is out from their definitions that an individual capacity to do work effectively and get ready for the other challenges of their lives is related with their physical fitness. Now meaning of wellness. What is wellness? Wellness is a vast term related with good health, balanced of mind and body and spirit of overall feeling of well-being. It gives us motive to live most and serve the best, thus give us healthy and happy life. That means if you are well with your mind and physique, it balanced of mind and body, spirit of overall feeling love with the well-being, which make your life best. According to James Ranieri, wellness is health related practice to optimize individual ability with balanced of physical, psychological, intellectual, social, emotional and spiritual aspect of the life. And according to the Halbert Aldun, it is an integrated method of functioning which is oriented towards maximizing the potential of individual capabilities by well balanced relation of body, mind and good health. Again students, you can see that the definition of wellness or the meaning of wellness in this line, wellness help us individual for active life without stress and improve our health. It make a person as active member of society and good citizen. Thus, the motive of optimum growth and development can be achieved through the wellness. That means if we are being healthy and well with our health and mental abilities, then we will become a good citizen of our society, of our country. Next, if we are talking about lifestyle in the sense our job place, our home place, our environment, how can we deal with our society, persons and other family members, it's all related to the lifestyle and which type of lifestyle we are adopted. It can be your game, yoga, exercises, by your food habits, your good habits. These all things are related to your lifestyle.
According to WHO, the health is defined by WHO, and what they said, health is a state of complete physical, mental, social being, individual, not merely the absence of disease or infirmity. That means human life is based upon the body. One keeps all the activities of life and done with the help of healthy and fit body. Nature has created humans to perform various type of activity efficiently. Today, modernizations has made human life easy, as most of the work is performed by the machine. The sedentary lifestyle has reduced the human efficiency. The lazy lifestyle of human has also led to many health problems like cardiac disorders, diabetes, cancer, asthma, obesity, and the many more chronic problems. That means whether we are using machines, आज के मॉडर्न टाइम पे हम लोग मैक्सिमम काम अपना मशीनों की हेल्प से करते हैं, जो कि हमारी लाइफ को इजी तो बना देता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को वो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुली इफेक्टेड करता है. नेक्स्ट, good health is based of individual. The lifestyle can improve the health of individual, like to regular physical activity, eat nutritious food, avoid fried and junk food, drink sufficient water, maintain personal hygiene, maintain good posture, take proper rest and sleep, manage stress and tension, recreate oneself, stay happy, not to intoxicants, avoid pollution, medical care, एक्सेट्रा. दैट मीन्स अगर आपको अपनी हेल्दी लाइफ को सुधारना है तो आपको अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस करने होंगे, जैसे कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत सारी करिए, ईट न्यूट्रिशियस फूड, अच्छे और न्यूट्रिशियस फूड को खाइए, अवॉइड फ्राइड एंड जंक फूड और फ्राइड फूड को अवॉइड करिए, ड्रिंक सफिशिएंट वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपनी हाइजीन को खुद को साफ सुथरा रखिए, मेंटेन गुड पॉस्चर, जब भी आप बैठ रहे हों या जब भी आप चलते हों तो आपका जो पॉस्चर हो वो क्या हो, अच्छा होना चाहिए. टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, प्रॉपर आराम करिए और 8 घंटे की कंप्लीट नींद लीजिए. मैनेज स्ट्रेस एंड टेंशन, एवरी इंडिविजुअल हैव द स्ट्रेस एंड टेंशन, वी हैव टू मैनेज विद एंड डील विद दैट. रिक्रिएट वन सेल्फ, अपने आप को फिर से एनर्जेटिक बनाइए. स्टे हैप्पी, खुश रहने की कोशिश करिए. नॉट टू इंटॉक्सिडेंट्स, कोई भी नशीली चीज़ों का सेवन मत करिए. नेक्स्ट वन, अवॉइड पोल्यूशन एंड मेडिकल केयर. पोल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए और अपना ध्यान रखिए, वो हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है. अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस. फिजिकल फिटनेस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. फर्स्ट इज़ total efficiency is improved. A physical fit person can perform more work with less fatigue and tiredness. Therefore, his total efficiency is improved. जो फिजिकली हेल्दी पर्सन है वो किसी काम को करने में कम थकता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से निभा सकता है. बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क. अ फिजिकल फिट पर्सन हैज़ अ बेटर रिस्पॉन्सेस. He is more accurate, therefore there is a less wastage of energy, there is better quality of work, it improves neuromuscular coordination. एक जो हेल्दी पर्सन है वो किसी भी काम को बहुत अच्छे से करता है, अच्छे से रिस्पॉन्स करता है, जिससे उसकी फिजिकल हेल्थ को भी हेल्थ भी क्या रहती है, अच्छी रहती है, और उसकी जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही अच्छा होता जाता है. ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस प्रोग्राम प्रोवाइड गुड हेल्दी environment, it help in the optimum growth and development. अगर आप फिजिकली हेल्दी और फिट हैं, वेल हैं, तो आपका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बिल्कुल प्रॉपर होगा. बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम. फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम प्रोवाइड गुड एटमॉस्फेयर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. दिस टाइम इज यूटिलाइज्ड इन अ हेल्दी वे. हेल्दी इन्वायरमेंट. टू रिमेन फिट, one requires healthy, clean and safe environment. Thus, a healthy and clean environment is built through physical fitness and wellness programs. That means physically fit रहना हर तरह से हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि जो भी हम काम कर रहे हैं वो बेटर दें, हमारे वर्क की क्वालिटी बेटर हो, हमारी हेल्थ बेटर हो, हम अपने टाइम का अच्छे से यूज़ कर पाएँ और एक बहुत अपने सोसाइटी में एक रिस्पेक्टफुल सिटीज़न बन सके. नेक्स्ट,
prevent health hazards and health problems. If you are physically fit, then your health hazards become less. The program physical fitness and wellness improve our immune system, thus prevent us from various disease and illness, moreover healing the faster and quicker. Improve psychological functioning. Physical fitness and wellness program improve the functioning of various system, thus body efficiently and effectively without any disorder. Good looking physique. Physical fitness and wellness activities help us to maintain good shape, size and body structure. Thus the physical personality become attractive. Improvement in physical abilities. Physical fitness and wellness activities directly improve strength, speed, endurance, flexibility, coordination abilities and great extent. Idea of hygiene habit. The program of physical fitness and wellness guide us to take an ideal balanced diet, also guide us how to control weight, remove postural deformations, develop hygiene habits and know the importance of these. That means हमें क्या, अगर हम फिजिकली फिट हैं, जो प्रोग्राम है वो हमें हेल्दी रखते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शन को सही रखते हैं, हमें गुड लुकिंग और अच्छे फिजिक के साथ डेवलप करते हैं, हमारी जो फिजिकल एबिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव करते हैं, हमारी हाइजीन को मेंटेन करते हैं और हमारी सोशल क्वालिटी को भी मेंटेन करते हैं, जो कि हम चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम फिजिकली फिट हैं तो हमारा मेंटली और सोशल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर होता है. नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ. सी, दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. Strength. It is an ability of muscles to overcome resistance. Strength can be defined as the amount of force. जो स्ट्रेंथ होती है वो हमें क्या करती है, ये किसी के भी मसल्स की एबिलिटी होती है जो हमें फोर्स को क्या करती है और डिफाइन करती है. स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स कैन बी मसल्स एक्सट्रैक्ट. जो आपकी स्ट्रेंथ है वो भी क्या होती है, दो तरह की होती है. कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज स्टैटिक, सेकेंड वन इज डायनामिक. स्टैटिक इज, इट इज ऑल्सो नोन एज द आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ. इट हेल्प द एबिलिटी ऑफ एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम सिंगल और वन पोजिशन. किसी एक पोजिशन से जो रेजिस्टेंस होता है उसके अगेंस्ट जो मसल्स हमारी वर्क करती है वो हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ कहलाती है. और डायनेमिक स्ट्रेंथ क्या है, जैसे आर्म रेसलिंग आप कर रहे हो, पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, पुशिंग बॉल कर रहे हो, तो ये सब किस में आता है, स्टैटिक स्ट्रेंथ में आएगा. डायनेमिक स्ट्रेंथ, इट इज ऑल्सो नोन एज द आइसोटोनिक स्ट्रेंथ. इट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट. जो स्टैटिक था वो एक जगह पे जो स्टेबल चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड जब हम अपनी स्ट्रेंथ को शो करते हैं तो वो हमारा होता है स्टैटिक स्ट्रेंथ, जिसे आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है डायनेमिक स्ट्रेंथ, जो कि मूवमेंट से रिलेटेड है. अब जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है उसमें भी 3 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से, लेट्स सी. फर्स्ट वन इज मैक्सिमल स्ट्रेंथ. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस. इट इज़ द क्वालिटी ऑफ मसल्स contract forcefully. It is also known as power. It is more required in weightlifting, throwing, wrestling, etc. It can be measured by throw attempts and power lifting. मैक्सिमल स्ट्रेंथ क्या होती है, ये जो आप मैक्सिमम रेजिस्टेंस के खिलाफ जो हम अपनी स्ट्रेंथ को शो करते हैं वो हमारी क्या होती है, मैक्सिमल स्ट्रेंथ होती है, जिसमें वेट लिफ्टिंग, थ्रोइंग और रेसलिंग आते हैं. नेक्स्ट होता है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ. इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद अ हाई स्पीड. In fact, it is the combination of strength and speed. In simple word, it is ability of muscles to perform forceful movement at quickest possible time. It is generally required in jumping activity and also in those games, sports where very fast and powerful responses are required. This strength can be measured by dynamometer or the jump chaining test. दैट मीन्स एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होती है, ये एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी हाई स्पीड की जो रेजिस्टेंस होती है उसके अगेंस्ट वर्क करने में, उसके अगेंस्ट हमें अपना फोर्स दिखाने में क्या करती है, हेल्प करती है. वो हमारी क्या होती है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होती है, जो कि जनरली हमारी जंपिंग में क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, या तो कोई ऐसे स्पोर्ट्स जहाँ पे बहुत ही फास्ट और पावरफुल रिस्पॉन्सेज हमको देने पड़ते हैं उससे रिलेटेड है.
नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एबिलिटी. इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस अंडर फिटेज कंडीशन. दिस क्वालिटी इनेबल अ पर्सन to sustain localized muscles group of extended period of time. It is commonly required for long distance race, swimming, road cycling and monitoring etc. Strength endurance can be measured through chin-ups. What that mean? जो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस होती है ये एक कॉम्बिनेशन होती है स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस एबिलिटी का. जैसे कि साइकिलिंग आप कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रेस हो रही है, तो आपके मसल्स हैं जो कंटिन्यूसली एक काम को करते रहते हैं और वहाँ की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो टाइम ड्यूरेशन स्पैन भी काफ़ी लंबा होता है. तो उतने लंबे टाइम तक आपकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कंटिन्यूस रहे, उसको हम बोलते हैं एंड्योरेंस. सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर टॉपिक. स्ट्रेंथ क्या होती है? किसी काम को या किसी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए आपके मसल्स जो एनर्जी दिखाती हैं, जो एबिलिटी मसल्स की होती है उसको स्ट्रेंथ कहते हैं. आपकी मसल्स जो अपनी स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करती हैं वो दो तरह की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक. जब स्टेबल चीज़ों के जब स्टेबल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हम वर्क करते हैं तो होता है स्टैटिक स्ट्रेंथ, और जब हम किसी मोशन में रहती हुई चीज़ों के अगेंस्ट, उनके रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वो होता है हमारा डायनेमिक. अब हम डायनेमिक में आते हैं. दैट मीन्स जो मोशन में है, जो मोशन में हमारी है उसके अगेंस्ट हम जब हमारी मसल्स स्ट्रेंथ शो करती हैं तो उसमें भी एक आता है मैक्सिमल. दैट मीन्स जो सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट जब हमारी मसल्स वर्क करती हैं तो होता है मैक्सिमल स्ट्रेंथ. एक्सप्लोजिव, बहुत ही हाई स्पीड या सडन जो चांस रेजिस्टेंस होते हैं उनके अगेंस्ट जब हमारी मसल्स वर्क करती हैं तो वो होती है हमारी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ. और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो हमारी मसल्स जिस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करती हैं वो हमारा होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. आई होप स्ट्रेंथ टॉपिक इज क्लियर टू यू. नाउ सी अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड. What is speed? It is the ability to perform movement at fastest rate. In other words, it is the ability to move as fast as possible. Speed is basically dependent on heredity, but can be improved through proper training. It depends upon the white muscles fiber. Please remind that white muscles fiber, जो हमारी speed होती है वो किस पे डिपेंड करती है? हमारी white muscle फाइबर पे, जिसे फास्ट ट्विस्ट भी बोलते हैं. तो स्पीड क्या होती है? ये एक एबिलिटी है आपको किसी भी काम को करने की, जो आपकी परफॉर्मिंग जो रेट है उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं. स्पीड अब कैसे रिलेट है हमारे फिजिकल एस्पेक्ट में वो देखते हैं. जो हमारी स्पीड है वो भी कितने टाइप की होती है? 4 टाइप्स में है. फर्स्ट है रिएक्शन टाइम. इट इज़ द टाइम टेकन बाय द बॉडी रिस्पॉन्ड इमीडिएटली आफ्टर द स्टिमुलस. इट कैन ऑल्सो बी सेड एट द फर्स्ट रिएक्शन टू द ब्रिंग बॉडी इनटू एक्शन. दैट मीन्स जब भी किसी इंडिविजुअल के सामने कोई कंडीशन या कोई स्टिमुलस आता है तो वो उसके लिए अपने रिस्पॉन्सेस को शो करता है. तो जितनी जल्दी आपके सामने स्टिमुलस आए और आप कितनी जल्दी उसको रिस्पॉन्स दे रहे हो, दैट मीन्स स्टिमुलस देखते ही जितने कम टाइम में आपके जो एक्शंस है वो वर्क करने लगते हैं, वो होता है आपका रिएक्शन टाइम. नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन. इट इज़ द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच मैक्सिमम स्पीड. दिस हेल्प टू गेन इनिशियल स्पीड ड्यूरिंग एक्शन. एक्सेलरेशन क्या होता है? जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टिंग में जो हमारी स्पीड होती है वो होती है 0, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाते हैं. तो 0 से मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के लिए जितना कम टाइम आप लेते हैं वही आपका क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन. नेक्स्ट, स्पीड ऑफ मूवमेंट. इट इज़ क्विकनेस of the complete action or movement. In other words, it is time taken by the body to perform complete an action. कोई भी एक्शन आपको कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वही आपका क्या कहलाता है? स्पीड ऑफ मूवमेंट कहलाता है. एंड नेक्स्ट है लोकोमोटर एबिलिटी. इट इज़ द एबिलिटी टू मूव फास्ट विथ चेंज ऑफ डायरेक्शन. लोकोमोटर क्या होता है?
कि आपके जो लिम्स हैं, आपकी जो बॉडी है, जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, पूरी तरह से उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन करके कितनी जल्दी आप क्या कर सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शंस को चेंज कर लेते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, लोकोमोटर एबिलिटी कहलाती है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट था स्पीड। स्पीड क्या है, किसी भी काम करने की वो एबिलिटी जो हम शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। फिर उसके बाद जो है स्पीड को भी कितने तरह से देखा गया है, 4 टाइप से देखा गया है। रिएक्शन टाइम, स्टिमुलस देखने के बाद जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं जितनी जल्दी, वो हमारा होता है रिएक्शन टाइम। एक्सेलरेशन, इनिशियल स्टेज से मैक्सिमल स्टेज तक पहुंचने में जो हम टाइम ड्यूरेशन लेते हैं, वो हमारी रेट जो होती है वो कहलाती है एक्सेलरेशन। पूरे टास्क को कंप्लीट करने में जो हम टाइम लेते हैं, उस टाइम स्पैन को कहते हैं स्पीड ऑफ मूवमेंट। और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बॉडी पार्ट्स के कोऑर्डिनेशन में अपनी डायरेक्शन को जो हम बदल लेते हैं जितने कम टाइम में, वो हमारी कहलाती है लोकोमोटर एबिलिटीज। आई होप स्पीड इज क्लियर टू यू। Now come on the next point, which is endurance. What is endurance? It is the ability to sustain or continue activity. In other words, it is the ability to resist fatigue. That means कोई भी काम अगर ज़्यादा देर तक आप कर रहे हो तो आपको उसमें थकान होती है, और उस चीज़ से आप कैसे ओवरकम करते हो, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आपका एंड्योरेंस बोलते हैं। It is one of the important component for middle and long distance race, and it is required for almost all major games like football, hockey, basketball, handball, etc. It can be measured through the distance run time or factor races. किसी भी काम करने की जो मैक्सिमम टाइम स्पेंड तक अगर हम काम कर रहे हैं, तो वो कैपेसिटी हमारी क्या कहलाती है, एंड्योरेंस कहलाती है। जो एंड्योरेंस है वो भी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, लेट अस सी। First one is short term anaerobic या muscular endurance. This component of endurance is helpful to perform activity for longer duration with fast speed. This is the endurance where the anaerobic type of activity is done when the intensity of speed is very fast. This endurance is for shorter duration and also known as muscular endurance, as activity is performed in absence of oxygen with the help of stored energy in muscle oxygen. Student, as you know, then we will in the respiration system of human, when we take oxygen, it goes through the lungs, and the oxygen is flowed with the help of blood in all part of our body. Muscles take oxygen from the blood, and when we work, our muscles use oxygen to complete any task. But for in this short term anaerobic muscular endurance, that for what time, in what time our muscles can work or perform perfectly, for the short time, it is known as short term endurance या muscular endurance. Next one is long term या aerobic cardiovascular endurance. This endurance is helpful when activity is done longer duration and the intensity of speed is slower. शॉर्ट टर्म में जब हम करते हैं तो वहाँ पे हमारी स्पीड क्या होती है, तेज़ होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो हमें लंबे टाइम के लिए करनी है और धीरे धीरे हम उसको करते जा रहे हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस कहलाती है। जैसे जो लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होते हैं, रोड साइकिलिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, मैराथॉन्स होते हैं, इसमें हमारा लंबा टाइम होता है और हमारी मसल्स धीरे धीरे लगातार बहुत लंबे टाइम के लिए काम करती हैं, तो उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी शुड सी फ्लेक्सिबिलिटी. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स टू मूव इन मैक्सिमम range. In other word, it is the range of joint to move maximum. We know that in our body there are 206 bones in which they are connected each other on a joint. There are different type of joints in our body, but every joint has their limit that they can move in a particular range. But with the practice and with the exercises, we can increase the motion of our joints.
So the maximum range of our joints which we can move, it is known as flexibility. हमारी पूरी बॉडी में डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स होते हैं और उन जॉइंट्स की क्वालिटी होती है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या एक पर्टिकुलर रेंज तक ही वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. लेकिन जब हम एक्सरसाइज और प्रैक्टिस के थ्रू उसके रेंज को इंक्रीज करते हैं, दैट मीन्स जो नॉर्मल हमारा नेचुरल है उस मूवमेंट से ज़्यादा हम अपनी प्रैक्टिस से अपनी जॉइंट्स को मूव कर लेते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है. फ्लेक्सिबिलिटी भी दो तरह की होती है. कौन कौन सी हम देखते हैं, एक्टिव एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी. पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इट इज़ दिस एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूव इन मैक्सिमम रेंज विद एक्सटर्नल हेल्प. अगर अपने जॉइंट्स को मैक्सिमम रेंज तक मूव कराने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होती है, जैसे स्ट्रेचिंग विथ पार्टनर. अगर हम पार्टनर के साथ स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो हमारा पार्टनर हमें हेल्प करता है हमारी जॉइंट्स को मैक्सिमम रेंज तक मूव कराने के लिए, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कहलाती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी. लेकिन एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, इट इज़ परफॉर्म्ड विदाउट एक्सटर्नल हेल्प और सेल्फ मूवमेंट ऑफ अ पार्ट टू द मैक्सिमल रेंज. लेकिन जब हम खुद से बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के अपने बॉडी जॉइंट्स को क्या करते हैं, मैक्सिमम रेंज तक मूव करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है. अब एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी भी दो टाइप की होती है. फर्स्ट है स्टैटिक, सेकेंड है डायनामिक. स्टैटिक कब होती है, इट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म्ड फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन. जब हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को स्टेशनरी पोजीशन पे दिखाते हैं तो वो हमारी कहलाती है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी. जैसे योगासन, टो टचिंग है, साइडवर्ड बेंडिंग है, ये सब हमारी किसमें, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी है. और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, इट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्मेंट वाइल इन मोशन और मूवमेंट. जब हम मोशन में रहते हुए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को शो करते हैं तो वो हमारी कहलाती है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, लाइक डाइविंग, जिम्नास्ट एक्सेट्रा. तो हमने अभी एक टर्म पढ़ा फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, हमारे बॉडी पार्ट्स में जो जॉइंट्स हैं उसको मैक्सिमम रेंज तक मूव करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी हमारी दो टाइप की होती है, पैसिव और एक्टिव. जब हम अपने बॉडी जॉइंट्स को मैक्सिमम रेंज तक मूव करने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल हेल्प लेते हैं तो वो कहलाती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी. लेकिन जब हम अपने बॉडी जॉइंट्स को मूव करने के लिए कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं लेते और खुद से उस मूवमेंट को शो करते हैं तो वो होती है हमारी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी. एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी भी जब हम स्टेशनरी पोजीशन पे शो करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं तो वो हमारी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है. और जब हम अपनी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को मोशन में रहते हुए शो करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है. आई जस्ट होप दैट दिस विल बी क्लियर टू यू. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और एगिलिटी. व्हाट इज दिस, लेट अस सी. It is the ability of the body to perform movement with perfection and efficiency. It is the ability of the human body to change its directions quickly and effectively. In other words, it is ability to change movement or directions in the shortest time without getting unbalanced. This provides good balance of body during action. It is in fact the proper combination of strength, speed, endurance and flexibility during movement. The accuracy of actions, rhythms, change movement, balanced graceful action, etc. all depend upon the coordinative ability. It maintains neuromuscular coordination that depends upon the central nervous system. It is required almost every game. अब coordination क्या होता है, हमें पता है कि जब भी हम कोई गेम करते हैं, हम जब भी कोई नॉर्मल एक्शंस भी करते हैं तो हमारी बॉडी के हर पार्ट क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं. दैट मीन्स आईज, हैंड, हेड, लेग, सब कुछ एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके तब हम किसी एक टास्क या एक्शंस को कंप्लीट करते हैं. तो ड्यूरिंग द गेम आपकी बॉडी की वो एबिलिटी जो शॉर्टेस्ट टाइम में सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करे और आपके बॉडी पार्ट एक दूसरे से बहुत ही प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में रहें, तो वो आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कहलाती है. अब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी भी क्या होती है, 5 टाइप की होती है. फर्स्ट है अडैप्टिव एबिलिटी. इट इज़ द एबिलिटी दैट इनेबल modification of motor activity on the basis of comparison, anticipation of a new changing condition while performing
एक्टिविटी, नई एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप कैसे खुद को चेंज करके मैं उसको तुरंत परफॉर्म करने लगती है आपकी बॉडी आपस में कोऑर्डिनेट करके, उसे हम बोलते हैं अडॉप्टिव एबिलिटी. नेक्स्ट है बैलेंस्ड एबिलिटी. इट इज़ द एबिलिटी टू कीप बॉडी इट्स पार्ट रिलेटिवली स्टेबल पोजिशन. आप अपनी बॉडी को कितना स्टेबल रख पाते हो, स्टेबल पोजिशन में रख पाते हो, वो होती है आपकी बैलेंस्ड एबिलिटी. नेक्स्ट वन इज कॉम्बिनेटरी और coupling activity. It is the ability to our partial movement together into more complex movement. जब हम कॉम्प्लेक्स मूवमेंट करते हैं तो उस टाइम पे हमारे बॉडी पार्ट जिस तरह से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं वो हमारी होती है कपलिंग एक्टिविटी एबिलिटी. नेक्स्ट है हमारी कैनेस्टिक एबिलिटी. इट इज़ द एबिलिटी टू रियलाइज कैनेस्टिक एंड डायनेमिक फीचर ऑफ मूवमेंट. इट इज़ द एबिलिटी दैट मीन्स हम जब मोशन में होते हैं जब हम काइनेटिक कंडीशंस में होते हैं तो उस टाइम पे हमारे बॉडी पार्ट जिस तरह से आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं उस एबिलिटी को हम कहते हैं काइनेस्टिक एबिलिटी. रिदमिक एबिलिटी. इट इज़ द एबिलिटी दैट इनेबल अ ग्रास्प मोटर मूवमेंट एक्सप्रेस दैट मूवमेंट इज वेरी कोऑर्डिनेटिव वे विद ग्रेसफुल एक्शंस. जब हम रिदम के साथ हमारे बॉडी पार्ट क्या करते हैं आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो उसको हम रिदमिक एबिलिटी बोलते हैं. एंड ओरिएंटेशन एबिलिटी. It is the practice of coordinative experiences to respond a complex movement and activity. कॉम्प्लेक्स मूवमेंट और एक्टिविटी पे रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे बॉडी पार्ट जिस तरह से आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशंस एबिलिटी. नाउ स्टूडेंट्स सी द कंपोनेंट ऑफ वेलनेस. कंपोनेंट वेलनेस के क्या कंपोनेंट हैं? वेलनेस के बारे में हमने पढ़ा. वेलनेस इज द एबिलिटी टू लीड अ वेल बैलेंस्ड लाइफ रिलेटिंग फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड इमोशनली बैलेंस्ड लाइफ. तो वेलनेस हमारी लाइफ से किस किस तरह से रिलेटेड है? लेट्स सी. फिजिकल एक्टिविटी. इट मेक द पर्सन फिट एंड एक्टिव. इट इम्प्रूव द वेरियस सिस्टम ऑफ बॉडी, इम्प्रूव अवर हेल्थ. इट इज़ ऑल्सो इम्प्रूव अवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारी जो फिजिकल ग्रोथ है वो हमारी क्या होती है? बहुत ही जल्दी मूव होती है. बैलेंस्ड इमोशनल लाइफ. Wellness require balanced emotional life, release emotions, moreover it should be under control. हमें हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे कंट्रोल में रहें तो हम वेलनेस हमारे लिए वेलनेस में रिक्वायर्ड है कि हम इमोशनली भी क्या रहें? स्टेबल रहें. एंड इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड. वेलनेस रिक्वायर पॉजिटिव इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड. हमारे ठीक रहने के लिए ये ज़रूरी है कि जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल है वो हमेशा पॉजिटिव रहे. दैट मीन्स हम हमेशा अच्छा सोच सकें. नेक्स्ट है एक्टिव सोशल लाइफ. एक्टिव सोशल लाइफ इज इम्प्रूव अवर सोशल क्वालिटीज एंड हेल्प अस टू एडजस्ट वेल इन सोसाइटी. मैनेजिंग स्ट्रेस. एवरी इंडिविजुअल हैव वेलनेस नीड्स द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन ऑफ लाइफ. स्पिरिचुअल वेलबींग. इट मेक अ पर्सन ethically good, morally good, peaceful, moreover guidelines and value of the life. Occupational wellness. It make a person to be hard worker and earn livelihood with honesty. It help us to achieve balance of work and leisure and the give satisfaction. Environmental wellness promotes good environment which is safe, clean and healthy, moreover away from pollutions. Component of health and फिटनेस. हेल्थ और फिटनेस के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? जो हमारा है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, हेड एंड लंग्स एंड्योरेंस. दैट मीन्स जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारे मसल ही प्रॉपर वर्क करें. जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, हमारा हेड, हार्ट है, हमारी ब्रेन है, जो हमारी लंग्स हैं वो भी प्रॉपर वर्क करने चाहिए और उनकी हेल्थ का भी हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट है मस्कुलर स्ट्रेंथ. हमें फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइजेस करके अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ को बहुत ही सही रखना चाहिए, स्ट्रांग रखना चाहिए ताकि हम सारे अपने वर्क एंड एक्शंस को इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकें. नेक्स्ट है मस्कुलर एंड्योरेंस. हमारी मसल्स को इतने स्ट्रांग और स्टेबल होने चाहिए कि हम लॉन्ग टाइम के लिए भी अगर हमारे पास कोई वर्क और एक्शन आता है तो हम उसको लंबे टाइम के लिए भी परफॉर्म कर सकें. फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? हमारे बॉडी जॉइंट्स को एक मैक्सिमम रेंज तक मूव करने की जो एबिलिटी होती है वो हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है. नेक्स्ट है बॉडी कॉम्पोजिशंस. इट इज़ द परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट एंड द फैट
compared to other body tissues such as bone and muscles. जो हमारे बॉडी में वेट का जो रेशियो होता है फैट का और हमारे अदर बॉडी पार्ट का, जैसे मसल्स और टिश्यूज़, अदर बोन टिश्यूज़ होते हैं, ब्लड टिश्यूज़ होते हैं, उनसे जो हमारा रेशियो होता है वो आता है आपके बॉडी कंपोजिशन के अंतर्गत. सो स्टूडेंट्स, आई विल शेयर दिस PDF on SCE app. You must see this chapter, read it properly and answer these questions which is given in your exercise. Try to solve these questions by your own. If there is any problem, I'll meet you in next video. Till then, take care and have a good day.